للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأكرمين الأجمعين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المبين: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد قال في مقام الآخر في شأن حبيبي تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین کرام و سجادگان پیر فیضی علیہ رحمہ و سجادگان پیر جمالی علیہ رحمت و رضوان و خلفائے سلسلے فیضیہ و جمالیہ و حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور ہم کو اپنے ایک ولی خاص، بندہ خاص، اقرب خاص کی یاد میں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. நண்பர்களே, நம்மை முஸ்லிம்களாகவும் மூமின்களாகவும் ஆக்கினார். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை திரு உம்மத்தில் ஆக்கி அதற்கான ஆனந்தத்தை நமக்கு கொடுத்தானே அந்த அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும். அதனுடன் குறிப்பாக நம்மை அல்லாஹுடைய காசான ஒரு அடிமை ஹஜ்ரத் ஹாஜா நாயிம் அவர்களை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு மஜ்லிஸில் நம்மை ஒன்று சேர்த்தானே அந்த அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ख्वाजा की मोहब्बत के लिए यहाँ जमा फरमाया. ये मोहब्बत सुन्नत इलाही है, मर्जी इलाही है, खुशनुदी इलाही है, सुन्नत मलाइक है और सुन्नत रसूल है. நாம் ஹாஜா நாயத்துடைய நேசத்திற்காக வேண்டி இந்த இடத்தில் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். அன்பர்களே, இப்படி ஒன்று சேர்வது என்பது அல்லாஹுடைய வளமையாகவும் ரசூலுல்லாவுடைய வளமையாகவும் மலாயித்துமார்களுடைய வளமையாகவும் சுன்னத்தாகவும் இருக்கிறது. मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मैं अरबी इबारत नहीं पढ़ूंगा, वक्त कम है. अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है वह नादा जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो तस्लीम को बुलाते हैं और फरमाते हैं, जिब्राइल तुम भी इससे मोहब्बत करो. फिर उसके बाद हुक्म करते हैं जो मलाइक है, आसमानी मखलूक है, उनमें भी ऐलान कर दो कि वो भी इससे मोहब्बत करे. फिर उसके बाद फरमाते हैं रूए ज़मीन पर भी इसकी मोहब्बत को जारी और सारी कर दो. तो इस हदीस से मालूम हुआ ख्वाजा की मोहब्बत सुन्नत इलाही, खुदा की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत. और रसूल की सुन्नत भी ये है कि ख्वाजा से मोहब्बत करने वाला है, रसूल भी मोहब्बत करते हैं. और इसी तरह मलाइक भी ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत करते हैं. उनकी भी यही सिफत है कि मलाइक भी ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, रसूल भी करते हैं, खुदा भी करता है, रूए ज़मीन की सारी मखलूक भी करती है. तो हम सुन्नत खुदा भी अदा कर रहे हैं, सुन्नत मलाइक भी अदा कर रहे हैं. सारी मखलूक खुदा यही सुन्नतें अदा कर रही है. முஸ்லிம் ஷரீஃபுடைய ஹதீஸாக இருக்கிறது. பெருமானார் சொன்னார்கள், அல்லாஹ் ஒரு அடிமையை நேசித்தால் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை கூட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான், இன்ன அடிமையை நான் நேசிக்கிறேன், நீங்களும் நேசியுங்கள் என்று சொல்கிறான். பின்பு ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் வானத்தில் சென்று அங்கருடைய மலாயித்துமார்களிடம் சொல்கிறார்கள், மக்களே, மலாயித்துமார்களே, இந்த பூமியில் உள்ள இன்ன ஒரு அடியானை அல்லாஹ்வும் நேசிக்கிறான், நானும் நேசிக்கிறேன், நீங்களும் நேசியுங்கள் என்பதாக சொல்கிறார்கள். பின்பு அந்த வலியை பற்றியான பிரியம், நேசம் என்பது பூமியில் வாழக்கூடிய மக்களுடைய கல்புகளிலும் வைக்கப்படுகிறது என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள்.
அப்போது எஜமான் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், நாம் இன்று காஜா நாயகத்தை நேசித்து இருக்கக்கூடிய இந்த பழக்கம் என்பது அல்லாஹ்வும் நேசித்திருக்கிறான், மலாயிக்குமார்களும் நேசித்திருக்கிறார்கள், பூமியில் வாழ்ந்த அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களும் நேசித்திருக்கிறார்கள். அந்த அமலை தான் நாமும் இப்போது செய்து கொண்டிருக்கிறோம், அந்த சுன்னத்தை தான் நான் இப்போது அதா செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதாக சொல்கிறார். अब ख्वाजा अजमेरी से जो मोहब्बत करता है वो खुदा की सुन्नत अदा कर रहा है, मलाइक की सुन्नत अदा कर रहा है, मौला के रसूल की सुन्नत अदा कर रहा है खुदा की। और ख्वाजा अजमेरी के जो साथ होता है, जो मोहब्बत करता है, हशर के दिन भी उनके साथ होंगे। அன்பர்களே, இங்கு நாம் அவர்களை நேசிப்பதை கொண்டு அல்லாஹ் ரசூலுடைய சுன்னத்தை நிறைவேற்றுகிறோம். அவர்களை நாம் நேசிப்பதை கொண்டு நாளை கியாமத்தில் அவர்களோடு இருப்போம் என்பதாக சொல்லி காட்டுகிறார். ख्वाजा की अफजलियत, ख्वाजा की अजमत, ख्वाजा की फजीलत, ख्वाजा की बरतरी, ख्वाजा की बुलंदी, सारी यही है वो महबूब खुदा व महबूब मुस्तफ़ा। காஜா நாயகத்துடைய உயர்வு என்பது, சிறப்பு என்பது ஒன்றை கொண்டுதான் இருக்கிறது. அவர்கள் அல்லாஹுடைய நேசராகவும் முகமது ரசூலுல்லாஹுடைய நேசராகவும் இருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்தினால் தான் அவர்களுக்கு இவ்வளவு சிறப்பும் இருக்கிறது. हर बंदे खुदा की यही ख्वाहिश होती है कि खुदा मुझसे राजी हो जाए, उसका हबीब मुझसे राजी हो जाए। ஒவ்வொரு அடிமைக்கும் அல்லாஹ்வும் என்னை பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும், அல்லாஹுடைய ரசூலும் என்னை பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்க வேண்டும். ख्वाजा से खुदा भी राजी, ख्वाजा से रसूल भी राजी। காஜா நாயகத்தின் மீது அல்லாஹ்வும் பொருந்திக் கொண்டவனாக இருக்கிறான், முகமது ரசூலுல்லாஹும் அவர்களை பொருந்திக் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார். ख्वाजा के सारे फजीलतों की फजीलत ये है वो खुदा का महबूब है, रसूल का भी महबूब है। காஜா நாயகத்துடைய சிறப்புகளுக்கெல்லாம் சிறப்பு என்னவென்றால் அவர்களை அல்லாஹ்வும் நேசிக்கிறான், ரசூலுல்லாஹும் நேசிக்கிறார்கள் என்பதுதான் உயர்ந்த சிறப்பாக இருக்கிறது. वो कैसा? आप बोलिए वो कैसा सरकार? अल्लाह சிறப்பாக இருக்கிறது. वो कैसा? आप बोलिए वो कैसा सरकार? अल्लाह राजी है, वो तो हम भी अल्लाह राजी रब्बना रब्बना बोल रहे, वो नहीं बोला मैं तुझसे राजी हूँ। ख्वाजा तू कैसा बोला? ख्वाजा भी हमारी तरह बनता है, चल रहा ना जमाने में हमारे जैसा। अरे मियाँ, अब बात तफसील में होंगी, जिसकी नजर जैसी है उसे वैसा नजर आता है। अबू जहल को रसूल दिखा, अबू बकर को रसूल कुछ और दिखा। नजर का कमाल। நண்பர்களே, நாம் காஜா நாயகத்தை சாதாரணமாக கருதுகிறோம். அவர்கள் மட்டும் எப்படி அல்லாஹுடைய நேசர்களாக ஆனார்கள்? நம்மை பார்த்து அல்லாஹ் உங்களை நான் நேசிப்பதாக அல்லாஹ் சொல்லவில்லையே, அவர்களை பார்த்து மட்டும் எப்படி சொன்னான் என்பதாக நாம் கேட்கிறோம். எஜமான் சொல்கிறார்கள், யார் யாருக்கு எவ்வளவு பார்வை இருக்கிறதோ அவர் அந்த அளவுக்கு பெற்றுக்கொள்வார், பார்த்து கொள்வார். அபூபக்கர் ரஸியல்லாஹுக்கு ரசூலுல்லாஹ் வேறொன்றாக தெரிந்தார்கள், அபூஜஹலுடைய பார்வையில் பெருமானார் வேறொன்றாக தெரிந்தார்கள். ख्वाजा महबूब खुदा कैसा? सीरत ख्वाजा उठा के देखो। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान को आपके पीर उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि अलैह हरम पाक में बैतुल्ला शरीफ में ले जाते हैं। मीज़ाब रहमत के नीचे ठहर के ख्वाजा का हाथ पकड़ के बोलते, मौला मैंने मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह में ला लिया हूँ, इसको मकबूल कर। सुभान अल्लाह। तो वहाँ से हाथी के गैब से आवाज आती है, मोइनुद्दीन को मैंने मकबूल कर लिया और मैं पसंद कर लिया। सुभान अल्लाह। அன்பர்களே, காஜா நாயகத்தை அவருடைய ஷேக் உஸ்மான் ஹர்வனி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி காபத்துல்லாவிற்கு கூட்டு சென்றார்கள். மீசாபே ரஹ்மத்திற்கு கீழ் நிறுத்தி வைத்து அவருடைய ஷேக் காஜா நாயகத்துடைய கையை பிடித்து அல்லாஹ்விடத்தில் சொன்னார்கள், யா அல்லாஹ், நான் மொயினுத்தீனை உன்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன், நீ அவர்களை கபூல் செய்து கொள் என்று அவருடைய ஷேக் சொன்ன பொழுது ஒரு மறைமுகமான முறையில் ஒரு சத்தம் ஒன்று கேட்டது, நான் மொயினுத்தீனை பொருந்தி கொண்டேன் என்பதாக. और वहीं से मदीने मुनव्वरा को गए, रोज़े रसूल के पास गए, बारगाहे रसूल के पास गए, दीदारे रसूल को गए। दीदारे रसूल को बोलना जैसे बारगाहे रसूल है वो, दीदारे रसूल है वो, जलवागाहे रसूल है, जहाँ को देखा जाता है, रसूल से मिलने को जाता है, रसूल को देखने जाता है आशिक मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान। அன்பர்களே, அங்கிருந்து பெருமானாரை பார்ப்பதற்காக வேண்டி கூப்பிட்டு சென்றார்கள்.
யார் பெருமானாரை பார்க்க வேண்டும் என்று போகிறார்களோ அவர்களுக்கு நிச்சயம் பெருமானார் அவர்கள் காட்சி தருவார்கள். आज भी रसूल की जियारत को नहीं, रसूल को देखने के लिए, रसूल से मुसाफहा करने के लिए जो जाता है, वो ईमान की हरारत जो लेके जाता है, जरूर उसे रसूल जवाब देते हैं. सुभान अल्लाह. या रसूल अल्लाह. அன்பர்களே, யாரெல்லாம் பெருமானாருடைய கபரை ஜியாரத் செய்ய அல்ல, பெருமானாரை ஜியாரத் செய்ய, அவர்களை முசாஹபா செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையோடு ஆவலோடு போகிறார்களோ அவர் நிச்சயமாக அதை செய்து கொண்டுதான் வருகிறார் என்பதாக சொல்லி காட்டுகிறார். सरकार की बारगाह के सामने हजरत उस्मान हरवनी सलाम पेश करते हैं, फिर फरमाते हैं मोइनुद्दीन तुम भी सलाम पेश करो. तो आप फरमाते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. तो रोज़े से आवाज आती है वालेकुम सलाम या कुतुबल हिंद. सुभान अल्लाह. அன்பர்களே, அவர்கள் ஷேக் அவர்கள் மதீனாவுக்கு கூப்பிட்டு போய் அங்கு நின்று ரசூலுல்லாஹ்வுடைய தர்பாரில் உஸ்மான் ஹர்வனி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி பெருமானாருக்கு சலாம் சொன்னார்கள். தன்னுடைய முரீதை பார்த்து சொன்னார்கள், காஜாவே நீங்களும் ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு சலாம் சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள். காஜா நாயகம் பெருமானாருடைய தர்பாரை பார்த்து அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா ரசூலுல்லாஹ் என்று சொன்னவுடன் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய தர்பாரில் இருந்து சத்தம் வந்தது, வலைக்கும் சலாம் யா குதுபல் ஹிந்த், இந்தியாவுடைய குதுபே உங்களின் மீது சலாம் உண்டாகட்டும் என்பதாக ரசூலுல்லாஹ்வுடைய தர்பாரில் இருந்து சத்தம் வந்தது. महबूब खुदा भी है, महबूब मुस्तफा भी. सारी बुलंदियों की बुलंदी ये है कि ख्वाजा अजमेरी खुदा की नजर में है, रसूल की नजर में है. அன்பர்களே, சிறப்புகளில் உயர்வான சிறப்பு என்னவென்றால் அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய பார்வையிலும் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பார்வையிலும் ஆகிவிட்டார்கள் என்பதுதான் அவர்களுடைய சிறப்புகளில் மிக உயர்ந்த சிறப்பாக இருக்கிறது. अपने पीर का भी महबूब है. சுப்ஹான் அல்லாஹ். தன்னுடைய ஷேக்குக்கும் நேசராக அவர்கள் இருந்தார்கள். ख्वाजा अजमेरी अलैहि रहमत व रिजवान की सीरत में उठा के देखिए, हजरत उस्मान हरवनी फरमाएंगे हशर के दिन मौला पूछेगा उस्मान क्या लाया है मेरी बारगाह में, तो मैं कहूंगा मौला मोइनुद्दीन को लाया. और सरकार फरमा रहे हैं हर मुरीद को पीर पर फख्र रहता है, मुझे मोइनुद्दीन पर फख्र है जो मेरा मुरीद है. वाह वाह. அன்பர்களே, எஜமான் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் காஜா நாயகத்தின் வரலாறு எடுத்து பாருங்கள். அவர்களுடைய ஷைக் உஸ்மான் ஹர்வனி ரஹ்மத்துல்லாஹ் சொன்னார்கள், நாளை கியாமத்தில் அல்லாஹ் என்னிடம் கேட்டால் உஸ்மானே என்ன கொண்டு வந்துள்ளீர்கள் என்று கேட்டால் நான் யா அல்லாஹ் மொயினுத்தீனை உன்னிடத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று நான் அல்லாஹ்விடம் சொல்லுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள், எல்லா முரீதுகளும் தன் ஷைகை நினைத்து பெருமைப்படுகிறார்கள், நானோ என் முரீது மொயினுத்தீனை நினைத்து பெருமை கொள்கிறேன், ஆனந்தம் கொள்கிறேன் என்பதாக அவர்கள் ஷைக் சொன்னார். मोइनुद्दीन जिस पे फिदा होता वो है पीर, लेकिन ये मुरीद ऐसा है जिस पर पीर फिदा हो रहा है, जिस पर पीर फिदा हो रहा है, ये ऐसा मुरीद है. तो मुरीदों को चाहिए, उनके गुलामों को चाहिए, उनके खाकसारों को चाहिए कि ये सुलूक तय करो कि अपनी पीर के नजरों में आला बनो, खुदा और उसके रसूल के महबूब बनो. ये है तालीम ख्वाजा अजमेरी. அன்பர்களே, முரீது என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும், காஜா நாயகம் போன்று இருக்க வேண்டும் என்பதாக சர்க்கார் சொல்லி காட்டுகிறார்கள். காஜா நாயகத்தை பார்த்து அவர்கள் ஷைக் சந்தோஷப்பட்டதின் பிரகாரம் நாமும் நம்மை பார்த்தால் நம்முடைய ஷைக் அவர்கள் சந்தோஷப்படும் அளவிற்கு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும். अब महबूब खुदा, महबूब रसूल, महबूब पीर, वो हम महबूब है, हम उसको पसंद कर रहे हैं, तो हमारी भी किस्मत कितनी अच्छी है, हम भी कितने ने आला है कि जो खुदा और उसके रसूल का महबूब है हम उसको महबूब रखते हैं. अल मरऊ मामन अहब्बा, जो यहाँ मोहब्बत का दावा कर रहा है हशर के दिन मौला बोलेंगे जा ख्वाजा अजमेरी के साथ. அன்பர்களே, யாரை அல்லாஹ் விரும்புகிறானோ, யாரை ரசூலுல்லாஹ் விரும்புகிறார்களோ, யாரை அவர்களுடைய ஷைக் விரும்புகிறார்களோ அவர்களை நாம் விரும்புகிறோம். ஹதீஸ்ல வருது நீங்கள் யாரை நேசிக்கிறீர்களோ அவர்களோடு இருப்பீர்கள் என்று. அப்ப இவர்களை நேசிப்பதின் காரணத்தினால் நாளை கியாமத்துல நாமும் காஜா நாயகத்தோட இருப்போம் என்பதாக எஜமான் சொல்கிறார். अब ख्वाजा अजमेरी की जात का कमाल ये है, आप जामे शरीयत व तरीक़त है, आप रौनक मिंबर व मेहराब है, आप शमए ज़ाहिर व बातिन रसूल है. इसका दूसरा नाम ख्वाजा अजमेरी. காஜா அஜ்மீர் நாயகத்துடைய சிறப்பு என்னவென்றால் அவர்கள் ஷரியத்தையும் தரீகத்தையும் தங்களில் உள்ளடக்கியவர்களாக இருந்தார்கள். வெளிரங்க ஞானங்கள் உள்ரங்க ஞானங்களின் விளக்காக அவர்கள் திகழ்ந்தார்கள் என்பதாக. आपके मुतवस्सिलीन को, आपके मुरीदीन को ये चाहिए कि शरीयत मिले या तरीक़त मिले.
जो सिर्फ तसव्वुफ हासिल करता है वो जिंदीक होता है, और जो सिर्फ शरीयत हासिल करता है वो फासिक होता है, जो दो भी हासिल करता है वो मुहक्किक होता है। इमाम मालिक फरमा रहे हैं तो ये तरीका इख्तियार करो। ख्वाजा अजमेरी का भी यही रास्ता है, सबका यही सुलूक है। அன்பர்களே, காஜா நாயகத்தை நேசிக்கக்கூடிய நாம் அவர்களுடைய வழிமுறையை கையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய வழிமுறை என்ன? ஒரு கையில் ஷரியத்தையும் மற்றொரு கையில் தரீகத்தையும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். मुझे चार चीजों की, तीन चीजों की तुम लोग इत्मीनान दियो, दलील दियो, सिक्योरिटी दियो तुम लोग, मैं तुम्हें जो है ना शादी दूसरी कर लूँ। तुम लोग मुझे इत्मीनान करो, ये तीन में जो सवालात कर रही हूँ उसका मुझे मुतमईन करो और मुझे उसका आप लोग श्योरिटी दियो, मैं जरूर शादी करूँगा। वो क्या तीन चीजें हैं? मैं जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ? पहले ये बोलो, मैं या जन्नती हूँ या दोज़खी हूँ, ये बताओ। और दूसरी बात ये है, कयामत के दिन मेरा नामे अमाल सीधे हाथ में होगा या बाएं हाथ में होगा, ये मुझे बताओ। और तीसरी बात ये है, कुल सरात से जब मैं गुजरूंगी या जन्नत में गिरूंगी या दोज़ख में गिरूंगी, ये मुझे बताओ। अगर इसमें मुतमईन करोगे मैं दूसरी शादी करूंगा। तो मालूम ये हुआ, राबिया बकरिया, हम उनका धूल, उनके नालैन का धूल वो सूफिया का लेके बैठे हुए हैं। राबिया बकरिया फरमा रही है, इसकी श्योरिटी दियो, मुझे मुतमईन करो तो मैं शादी करती हूँ। शादी क्यों होती? इलैहा, सुकून पाने के लिए। उन्होंने बोल रहे हैं ये सुकून न को मैं इसमें बेचेंगी, पहले इसमें मुतमईन करो, ये सुकून दियो कि शादी करो। அன்பர்களே, ராபியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா, ராபியா பஸ்ரியா அம்மா அவர்களை பற்றி நாம் எல்லோரும் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறோம். அவர்கள் ஒரு நிக்கா செய்தார்கள். அந்த நிக்கா சீக்கிரமே தலாக்காகிவிட்டது. அப்புறம் இன்னொரு நிக்கா செய்து கொள்ளும்படி அவர்களை நேசிப்பவர்கள் சொன்ன பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், 3 விஷயத்திற்கு எனக்கு நீங்கள் கேரண்டி கொடுங்க, இந்த 3 விஷயங்களில் உங்களுக்கு அபயம் வெற்றி இருக்கிறது என்பதற்கு நீங்கள் ஒரு ஆதாரத்தை எனக்கு கொடுங்கள், நான் நிக்கா செய்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள், நான் சொர்க்கவாசியா நரகவாசியா என்பது உங்களில் யாரிடமாவது ஆதாரம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார்கள். அதே போல் நான் கியாமத்தில் என்னுடைய அமல்களுடைய பட்டோலை என்பது வலது கையில் கொடுக்கப்படுமா இடது கையில் கொடுக்கப்படுமா, இதை உங்களில் யாராவது ஒரு ஆள் சரியாக சொல்ல முடியுமா என்று கேட்டார்கள். 3வது, சிராத்துல் முஸ்தகீமுடைய பாலத்தில் நான் நடக்கும் பொழுது நரகத்தில் விழுவேனா சொர்க்கத்தில் விழுவேனா, இதற்கு ஏதேனும் எனக்கு ஒரு ஆதாரம் இருந்தால் கொடுங்கள், என்னுடைய கல்பில் இதை பற்றியான நிம்மதி வேண்டும், இதற்கு நீங்கள் ஆதாரம் கொடுத்தால் நான் அடுத்த நிக்கா செய்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னார்கள். हम कौन से सूफी है, हमारे को कौन सा सुकून है, हमें कौन सा इत्मीनान है जो रसूल की शरीयत को छोड़ के तरीकत को हासिल करे। वाह वाह, पहले शरीयत से गामजन हो, जो नमाज में कामिल नहीं वो तरीकत में असलाती सलातीन दाइमुन में कहाँ पहुँचता है। जिसको फराइज़ वुज़ू नहीं आते, फराइज़ गुस्ल नहीं आते, फराइज़ तयम्मुम नहीं मालूम, अरे जिस्म को पाक करने नहीं आता, कल्ब को क्या पाक करता है? जिस्म को पाक जब करेगा, कल्ब अंदर है ना, दूसरा दर्जा है। पहला देना, पहला सीढ़ी, फिर दूसरा सीढ़ी, पहले जिस्म पाक होना। ये कपड़ा पाक, जिस्म नापाक रहा तो नमाज नहीं होता। ये पाक करने का तरीका नहीं आ रहा, हा हू के अल्लाह के बात कर रहा है, तरीकत की बात कर रहा है। राबिया बसरी, ख्वाजा अजमेरी बता रहे हैं, पहले जिस्म को पाक कर, पहले शरीयत को सुधार, उसके बाद तरीकत में आना। खल्क की बात, बातिन की बात अंदर, दूसरे दर्जे की बात, पहले जिस्म का तस्किया कर, उसके बाद खल्क का तस्किया। அன்பர்களே, ராபியா பஸ்ரியா போன்ற சீதேவிகள் எதை நினைத்து அழுதிருக்கிறார்கள்? நாம் எந்த வகையான சூஃபிகராக இருக்கிறோம்? நமக்கு குளிப்பின் கடமை தெரிவதில்லை, தொழுகையின் கடமை தெரிவதில்லை, ஒழுவின் கடமை தெரிவதில்லை. நாம் வெளிரங்கத்தில் ஷரியத்தில் எதையுமே சுத்தம் செய்யாமல் கல்வை சுத்தம் செய்துவிட்டு பெரிய ஆளாக ஆகிவிடலாம் என்று கருதுவது எந்த முறையில் சரியாக இருக்கும் என்பதாக சர்க்கார் கேட்கிறார். पहले शरीयत में कामिल नहीं, रसूल से आगे निकल गए। हाल देने वाला रसूल, हाले रसूल का नाम तसव्वुफ, हाले रसूल का नाम तरीकत, शरीयत का नाम मेरे रसूल के इरशादात अक़वाल, मेरे रसूल के हाल का नाम तरीकत है। पहले हाल है ना, पहले काल है ना,
क्या फरमा रहे हैं सरकार, अफला अकूनु अब्दन शकूरा। साहब बोले या रसूल अल्लाह, आपको रोजे का क्या जरूरत है, आपको नमाजों का क्या जरूरत है, आपको जिहाद का क्या जरूरत है, आपको हज का क्या जरूरत है। तो फरमा रहे हैं अफला अकूनु अब्दन शकूरा। मुस्तफा बोल रहे हैं, मुस्तफा बोल रहे हैं, या अय्युहल मुजम्मिल उम्मिल लैला इल्ला कलीला। मुजम्मिल क्या माना, नवाफिल रात भर मुस्तफा अदा कर रहे हैं। अरे खुल्ब इलाही के मजे में मुस्तफा है, हरी में नाचने रहता है, लेकिन यहाँ पर सज्जे कर रहा है। तो मौला बोल रहे हैं, ऐ चादर के ओढ़ने वाले, ऐ कमली के ओढ़ने वाले, उम्मिल लैला इल्ला कलील, इतना क्यों कर रहा है, इतनी मशक्कत क्यों कर रहा है, शरीयत में इतना क्यों कमाल रखा हुआ है, कुछ थोड़ा कर ले, अपने जिस्म का भी ख्याल कर ले। मुझसे मौला ख्याल कर रहे हैं जिस्म का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை விட நாம் உயர்ந்தவர்களா ஆகிவிட முடியுமா என்ன அன்பர்களே? அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா எவ்வளவு ஞானங்களை வழங்கி இருந்தும் கூட இரவெல்லாம் நின்று வணங்கினார்கள், அதிகம் அதிகம் நோன்பு வைத்தார்கள். சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள், யா ரசூலுல்லாஹ், தாங்கள் இவ்வளவு நோன்பு வைக்க, இவ்வளவு நஃபில்களை தொழுக என்ன அவசியம் இருக்கிறது என்று கேட்ட பொழுது பெருமானார் சொன்னாங்க, அஃபலா நகூன் அப்தன் ஷகூரா, நான் அல்லாஹ்வுக்கு ஒரு நன்றியுள்ள அடியானாக இருக்க வேண்டாமா என்பதாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். என்றால் அன்பர்களே, எவ்வளவு அவர்கள் ஷரியத்துடைய விஷயங்களை மதித்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க நாம் கடமை. ख्वाजा से हाले रसूल भी लो, हाले रसूल भी लो। ये भी ख्वाजा फरमाया, जामे शरीयत वो तरीकत का नाम ख्वाजा अजमेरी। तो रसूल की शरीयत भी जिससे मिलती है, रसूल का हाल वो तरीकत भी जिससे मिलता है, उसको बोलते हैं ख्वाजा अजमेरी। अब यहाँ उलमा भी बैठे हुए हैं, कुछ इल्म की बात, जाहिर रसूल की भी बात, मदरसे का भी बात है, पूरा क्या बोलते हैं आप लोग पिछड़ा है ये मुहर्रम का, सब मिला के गजला बना है। मौला बोलो, बोले खाजा पे बोलो, मदरसे पे बोलो, तरीकत पे पूरा बोलो, और बोलो आधा घंटा, उसका रोक से कम होता है। बोलो पूरा, मगर बोलो आधा घंटा। क्या क्या बोलना उनका ही में। लौकान अल बाहरू मिदादन लि कलिमाति रब्बी लनफिदल बाहरू क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी व जिना बिमिस्लिही मददा। उनकी शान आधे घंटे में, सारी जिंदगी कुर्बान है। कुल रब्बी जिदनी इल्मा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। शरीयत पूरी आ गई है, दीन मुकम्मल हो चुका है, फिर कुल रब्बी जिदनी इल्मा क्या, कौन सा इल्म है? अरे उनके लिए जिंदगी खत्म करना है, इनके लिए तुम नहीं रहना है, जब तक इल्म लेते रहना है। அன்பர்களே, எஜமான் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், அல்லாஹ் தஆலாவுடைய ஞானங்கள் என்பது நம் வாழ்நாள் முழுக்க முடிந்தாலும் சரி அதை பேசி முடிக்க முடியாது. கடல்கள் அனைத்தும் மையாக்கப்பட்டு பூமியில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் அனைத்தும் பேனாவாக ஆக்கப்பட்டாலும் அல்லாஹ்வுடைய கலிமாக்களை விவரிக்க முடியாது என்று இருக்கும் பொழுது அரை மணி நேரத்தில் அதை எப்படி பேசி முடிக்க முடியும் என்பதாக சர்க்கார் அவர்கள் நம்மிடத்தில் கேட்கிறார். तो ख्वाजा की शरीयत वो तरीकत लेना है, तो ख्वाजा के उसूल पे सीरत पर अमल करो। उलमाए ज़वाहिर के लिए, खाले रसूल के लिए सरकार ने फरमाया, हदीस पाक है, जो कोई शख्स इल्म इसलिए हासिल करता है कि வேறொரு ஹதீஸில் வருகிறது, பெருமானாரிடம் கேட்கப்பட்டது, யார் ரசூலுல்லாஹ், இரு நபர்கள் இருக்கிறாரு, ஒருவர் தொழுது விட்டு மக்களுக்கு அல்லாஹ்வை பற்றி பாடம் நடத்துகிறார், இன்னொரு நபர் தொழுது கொண்டே இருக்கிறார், இவர்கள் இருவரில் எவர் சிறந்தவர் என்று பெருமானாரிடம் கேட்கப்பட்ட பொழுது பெருமானார் சொன்னார்கள், அந்த முதல் நபர் தான் சிறந்தவர், தொழுது விட்டு மக்களுக்கு பாடம் கொடுக்கிறாரே அவர்தான் சிறந்தவர். எப்படி உங்களில் சாதாரண மக்களில் நான் சிறந்தவனோ அதுபோல் அவர்கள் இருவரில் அந்த நபர் சிறந்தவர் என்பதாக ரசூலுல்லாஹ் சொன்னார். कंजुल उम्माल की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सरकार फरमाते, अबू हुरैरा, कुरान का दर्ज देते रहो और सीखते रहो, इसी तरह अगर इस हालत में तुम्हारी मौत होगी तो तुम्हारी खबर के मलाइक तवाफ करेंगे। கன்சூல் உம்மாலுடைய ஹதீஸா இருக்கு. பெருமானார் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு பார்த்து சொன்னார்கள், அபூ ஹுரைரா அவர்களே, நீங்கள் குர்ஆனுடைய இல்மை கற்றுக்கொண்டே இருங்கள், கற்றுக் கொடுத்து கொண்டும் இருங்கள். நீங்கள் இதே நிலையில் வஃபாத் ஆனால் உங்களுடைய கபரை மலாயிக்குமார்கள் தவாப் செய்வார்கள் என்பதாக பெருமானார் சொன்னார்கள். इल्म को किसी फखर के लिए,
हासिल मत करो। तकब्बुर के लिए नहीं, मन तकब्बरा वज़ाहुल्लाह, तकब्बुर नहीं होना। आलिम की सिफत में तकब्बुर होना ही नहीं, तकब्बुर करना ही नहीं। बिल्कुल इल्म नहीं है, नदामत, आजिजी, वो इनके सारी आना। इल्म जिसके पास होता है उसके बाद नदामत होती है। तो अपने आप को मैं आलिम हूँ, अकड़ पकड़ नहीं। अकड़ किसकी सिफत है? शैतान की। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। तकब्बुर सिफत उनकी न को लियो, रसूल की लियो। रसूल जब चलते थे तो नीचे मुंह डाल के, मेरा रसूल कौन है? महबूब खुदा है। सारा इल्म मौला का इल्म है, सिफत का कामिल जो रखने वाला है वो नीचे मुंडी डाल के चल रहा है। अरे तुझे कौन सा सर है, कौन सा तकब्बुर है तेरा? அன்பர்களே, இல்மை வாங்கி கொண்டு நம்முடைய கல்புகளில் பெருமை வரக்கூடாது. அன்பர்களே, பெருமை வந்தால் அது ஷைத்தானிடம் இருந்த பழக்கம். அது பெருமானார் இல்முடைய களஞ்சியமாக இருந்தார்கள். இருந்தாலும் அவர்கள் நடக்கும் பொழுது தலையை கீழே போட்டு நடப்பார்கள் என்றால் அன்பர்களே, அவர்களுடைய உயர்வு என்னவாக இருக்கிறது? நாம் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வழிமுறையை கையில் எடுக்க வேண்டும் என்பதாக सरकार। तकब्बुर की एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ की, एक ताबई हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो अक़वाल कहा, इरशाद कहा, वो मुझे सुनाइए। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वो बोलने जाते बेहोश होकर गिर जाते, फिर होश आता, फिर बोलने जाते, फिर बेहोश हो जाते। इसी तरह 3 बार बेहोश हुआ, फिर होश हुआ, आए बात बोलना शुरू कर, रो रही, ज़ारो कतार रो रही। फरमाया रसूल खुदा ने फरमाया, हशर के दिन 3 लोगों को मौला अपने सामने बुलाएगा। किस किस को? जिसको इल्म दिया उसे बुलाएगा, जो शहीद हुआ उनकी बारगाह में उसे बुलाएगा, जिसे माल दिया उसे बुलाएगा। बुला के मौला सवाल करेंगे, इल्म वाले से पूछेंगे, मैंने तुझे इल्म दिया, क्या अमल किया? तो बोलेगा, मौला मैंने तेरी मखलूक को इल्म बताया हूँ। तो मौला बोले, नहीं, तूने तकब्बुर के लिए इल्म बताया कि लोग समझे कि मैं आलिम हूँ, मैं अल्लामा हूँ, इसलिए तू ये इल्म बताया। जा चल, झूठा है। मौला बोलेंगे झूठा है, हदीस का अल्फाज करो। फरिश्ते भी कहेंगे हाँ ये झूठा हो जाएगा। फिर शहीद आएगा, शहीद से मौला बोलेंगे, मेरी राह में कुर्बान हुआ, क्यों हुआ? इसलिए हुआ। बोले, आपकी राह में जो कुर्बान होता है आपका नजारा करता है, बेहिजाब आपको देखता है, इसलिए मैंने शहादत हासिल की। मौला बोले, नहीं, तू इसलिए शहीद हुआ कि लोग बोले अरे शहीद होगा, शहीद होगा, बड़ा आदमी है। तकब्बुर के लिए, अपने फखर के लिए शहादत ली, मेरे लिए नहीं की। झूठा है, हट जा। मलाइक बोलेंगे हाँ ये झूठा है, हटो। फिर मौला मालदार को बुलाएंगे, माल वाले। मौला बोले, मैंने माल दिया, दौलत दिया, क्या किया? बोले, मौला तेरे फुकरा बन के तेरे मसाकीन को दिया, तेरे मसाकीन को दिया। मौला बोले, झूठा है, तू इसलिए दिया, मिस्कीन देखे और 4 लोग देखे, बोले अरे बड़ा शख्सियत है, बड़ा दौलत देने वाला है, इसलिए तू दिया, बड़ा आदमी है, पैसे वाला, देता है, इसीलिए तू दिया, तेरा इरादा ये था। मौला बोले, झूठा है, जा, मेरे लिए नहीं दिया, अपने अना के लिए दिया, अपने फख्र के लिए दिया, हट जाए से झूठे। तो सरकार हदीस में फरमा रहे हैं, अबू हुरैरा, ये 3 लोगों से ही जहन्नम की आग जलाई जाएगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। ये मदरसा जो चल रहा है, यहाँ का फारिग नदीम रहना, नदामत होना, आजिजी होना, इंकिसारी होना, इल्म पे फख्र न करो, इल्म पे फख्र नहीं करना। नबी है ना मूसा, क्या बोले अपनी कौम में, मैं तो उससे इल्म रखता हूँ, बोले किधर करने जाओ, जाओ किधर करने। तो क्या हुआ, कच्ची में किधर और मूसा चल रहे हैं, एक कौवा आया, आके पानी पिया, रस्सी उठा के पानी पिया। तो हजरत किधर अलैहिस्सलाम तो तस्लीम बोल रहे हैं, मूसा ये क्या इशारा है, कौवा पानी क्यों पी रहा है? तुमने बोला मैं अलीम हूँ। मौला बोले,
यहाँ पानी जो तुमने पिया, कौवा जो पीरा, बता रहा मौला के बहरे ஹதீஸ்ல ஆதாரம் இருக்குன்றார். என்னன்னு கேட்டாங்க சர்க்கார். பெருமானார் சொன்னா, நீங்கள் யாராவது இஸ்திஞ்சாவுக்கு போனா அப்ப யூத்திர், அவர் என்ன செய்யட்டும், வித்திர்ல ஆக்கட்டும் அப்படின்னு ஹதீஸ்ல இருக்கு. அந்த ஹதீஸ்க்கு மானா என்னன்னு கேட்டா, யாராவது பீஷாவுக்கு போனா டேலா கட்டி வந்து 3 தடவையோ 5 தடவையோ ஒத்தப்படையில பிடிக்க சொல்லி பெருமானார் சொன்னாங்க. அவர் ஹதீஸை விளங்காதனால அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் வச்சுட்டாரு, ஒண்ணுக்கு போயிட்டு வந்தாலே வித்திரவாதி திரும்ப தொழுன்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு. அப்ப சர்க்கார் சொல்றாங்க, உனக்கு லாஹிரவே விளங்க தெரியல, நீ எப்படி பாத்திரான ஞானங்களை விளங்க முடியும்னு கேக்குறாங்க சார். शादी शिराजी का एक वाक़या करके अपनी बात को खत्म करो. क्या बोला? शादी शिराजी अलैहि रहमा क्या फरमाए अपने शेर में, दोस्त के बुरे वक्त में उसका हाथ थामता है. दोस्त के बुरे वक्त में उसका हाथ थामता है. खुदा ना खास्ता मौला गिरे, हाथ थामना इसको बोलते. शादी शिराजी अचार में बोले. एक आदमी क्या हुआ, एक दुश्मन एक उसके दोस्त को मार रहा. अब आप मेरे दोस्त है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको कोई मार रहा है तो मैं आके आपको पकड़ लिया, तो वो एक दुश्मन दोस्त को मार रहा है, तो वो इन्हें क्या करा, दोस्त आके उसके दोस्त को पकड़ लिया, दुश्मन को बोल रहा मार मार मार, उन्हें मार दिया फुल मार दिया, लेट जाऊँ. लेट के होश में आ गया, क्या करा रहे भाई तू, दोस्त है वो तो तू अभी पकड़ के दिया, उन्हें मार मार के खत्म कर दिया. कई को ऐसा बोले, वो तो नहीं शादी शिराजी बोले, दोस्त के बुरे वक्त में हाथ पकड़ता तो मैं हाथा पकड़ लिया. इसीलिए बोलते हैं कुरान और हदीस को समझने के लिए बस आलू अहल जिक्री इन कुंतुम ला तालमून. ये जाहिर को नहीं समझा, शादी शिराजी के कौल को नहीं समझा, कुरान को समझता, हदीस को समझता. इनके समझने के लिए हाजा का दामन थामना है. அன்பர்களே, ஷீராஜி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களுடைய ஒரு ஷேர்ல ஒரு பைத்துல நிஜமா என்ன சொல்றாங்க, எந்த மனிதன் தன்னுடைய நண்பனுடைய கஷ்ட காலத்துல அவனுக்கு கை கொடுக்கிறானோ, அவனுடைய கையை பிடிக்கிறானோ, அவன் தான் சிறந்தவன் என்பதாக ஷீராஜி ரஹ்மத்துல்லாஹ் சொல்றாங்க. இதை கேட்ட ஒரு மனிதன் என்ன செஞ்சா, 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க. இவன் போய் தன்னுடைய தோஸ்தை நல்லா கட்டி பிடிச்சி இழுத்து பிடிச்சி அவன் போட்டு சாத்தி எடுத்துட்டான் இந்த ஆளை. அப்ப இவரு தெளிவாகுனதுக்கு அப்புறம் அவன்கிட்ட கேட்டாரு, ஏயா என்ன நீ பிடிச்ச, நீ என்ன பிடிக்காம விட்டுருந்தா நான் அவனை கொஞ்சமா தடுத்துட்டு பண்ணி நீ என்னத்துக்கு பிடிச்சேன்னு கேட்டார். அப்ப அந்த மனிதன் சொன்னா, ஷீராஜி ரஹ்மத்துல்லாஹ் சொல்லியிருக்கிறாங்க, கஷ்டம் வந்தா போய் பிடிச்சிக்கணும்னு சொன்னாங்க, அதனாலதான் நீ அடி வாங்கும் போது உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டேன்டா அவரு. அப்ப சர்க்கார் என்ன சொல்லி காட்டுறாங்க, ஷீராஜி ரஹ்மத்துல்லாஹ்வுடைய சொல்ல கூட விளங்க தெரியாத நீ மௌலாவுடைய குர்ஆனை எப்படி விளங்க முடியும்? நீ குர்ஆனை விளங்க வேண்டும் என்றால் ஃபஸாலு அஹ்ல ஸிக்ரி இன் குன்தும் லா தஅலமூன், நீ அறியவில்லை என்றால் அஹ்ல ஸிக்ர்ட்ட போய் கேளுங்கறான் அல்லாஹ் தஆலா. अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हम जो कहते हैं सुनते हैं, इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा. जैसे ज़ाहिर रसूल से हमें मालामाल किया, बातिने रसूल से मालामाल किया, उस पर सही अमल करने की तौफीक इनायत फरमा. रसूल के खाल व हाल का हमारे मस्ती इनायत फरमा. ख्वाजा के फैजान से हम सबको मालूमात फरमा. ख्वाजा के उलूम से हम सबको मालूमात फरमा. ख्वाजा के ज़ाहिरी व बातिनी उलूम से हम सबको मालूमात फरमा. कुरान का सही फहम हमें इनायत फरमा. जो इल्म रखते हैं उनके कुलूब में नदामत इनायत फरमा. और जब तक इन्हें इल्म देता रहे मौला, इन्हें तेरा दीवाना बनाए रहे, तेरे रसूल का दीवाना बनाए रहे. इस मदरसे से जो फारिग हो रहा है, तेरा दीवाना रहे, तेरा आरिफे वासिल रहे, तेरे हबीब का आशिक रहे, तेरे हबीब की हकीकत को समझने वाला रहे, दीन और दुनिया में वो मुअज़्ज़ज़ व मुमताज रहे. सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह. أحمد ليس مثلك أحد مرحبا مرحبا سلام عليك مرحبا مرحبا سلام عليك واجب حبك على المخلوق يا حبيب العلا سلام عليك أعلم الخلق
किया सलामुन अलैहि कुशिफत मिनका ज़ुल्मतु ज़ुलमी कुशिफत मिनका ज़ुल्मतु ज़ुलमी अंत बद्रु तुजा सलामुन अलैहि अंत बद्रु तुजा सलामुन अलैहि तालिउ मिनका कौकबुल इरफान अंत शम्सुल दुहा सलामुन अलैहि महबतल वईमाज़ल कुरआन साहिबुल इहतिदा सलामुन अलैहि इन्नका मक़सदी व मलजाई इन्नका मक़सदी व मलजाई इन्नका मुद्दा सलामुन अलैहि इन्नका मुद्दा सलामुन अलैहि मतलबी या हबीबी लैसा सिवाक अंत मतलुबुना सलामुन अलैहि सय्यदी या हबीबी मौलाई लक रूही फिदा सलामुन अलैहि हादा कौलु गुलामिका इश्क़ी हादा कौलु गुलामिका इश्क़ी मिन्हु या मुस्तफ़ा सलामुन अलैहि मिन्हु या मुस्तफ़ा सलामुन अलैहि या शफ़ीअल वरा सलामुन अलैहि या नबीअल हुदा सलामुन अलैहि खातिमुल अंबिया सलामुन अलैहि सय्यदुल अस्फिया सलामुन अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या रब्बी सल्ली वसल्लिम